Welcome students on our YouTube channel RS Aspirants. Today we are going to discussing about the most 10 important questions of biology. So the first one is secondary radial symmetry is found in. Options are Cnidaria, B option is jellyfish, C option is Echinodermata and D option is Hemichordata. So here if we talk about the Cnidaria, in the Cnidarians there is radial symmetry. There is only radial symmetry. But we talk about the secondary radial symmetry. Secondary radial symmetry means that there is the presence of both the symmetries. Which both? First one is the radial symmetry और bilateral symmetry. यहाँ पे दोनों होनी चाहिए, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री इन द सेकेंडरी रेडियल सिमेट्री. But in case of Cnidarias में only radial symmetry is present. So second option is jellyfish. In the jellyfish is the example of Cnidaria. So here is also radial symmetry. Next is the Echinodermata. Echinodermata exhibits secondary radial symmetry. Here both radial symmetry and bilateral symmetry is present. Next is the Hemichordata. Hemichordata contain the bilateral symmetry. So here C option is the correct option. Now we move on the next question. That is, vascular system is found in. Options are mollusca, B options are arthropod, C option is Annelida and D option is Echinodermata. So here we know that कि जो Echinodermata होते हैं they contain the water vascular system. Through the water vascular system water enters in the body of the Echinodermata which brings food for them and expelled out. So here Echinodermata is the correct option. Or also one phylum, that is the Porifera. Porifera also contain a system that is known as the canal system. Canal system, which is also known as the water vascular type system. Okay. In which the water enters from the ostia and removed from the osculum. So here water vascular system is found in the Echinodermata. So here correct option is the Echinodermata. Now we move on the next question. That is, changes that allow the conversion of larvae into adults are known as. A option is metagenesis, B option is alteration, C option is metamorphosis and D option is metastasis. So if we talk about the metamorphosis means कि change from nymph or larva to the adult. यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, दैट इज़ नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. अगर हम बात करें मेटाजेनेसिस की, तो मेटाजेनेसिस क्या होता है? ये ट्रांजिशन फेज़ होता है सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज़ के बीच का एक फेज़ होता है. दैट प्रोसेस इज नॉन एज द मेटाजेनेसिस. नेक्स्ट इज़ द अल्ट्रेशन. अगर हम बात करें अल्ट्रेशन की, अल्ट्रेशन होता है चेंज इन द फॉर्म और शेप और अपीयरेंस. किसी की शेप में चेंज आना, फॉर्म में चेंज आना, दैट इज़ नोन एज द अल्ट्रेशन. नेक्स्ट इज़ द मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस मीन्स कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपनी एक ऑर्गन से छोड़ के दूसरे ऑर्गन में जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज़ नोन एज द मेटास्टेसिस. सो हेयर मेटामॉर्फोसिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
Now we move on the next question, that is the zoological name of the Indian crate is a snake. सो उसका जूलॉजिकल नेम हमें बताना है यहाँ पे. ऑप्शंस आर बेंग्रस कैरिलियस, बी ऑप्शन इज ऑफियोफेगस हैनस, सी ऑप्शन इज वाइपर रुसिली and D option is naza. So here A option is the correct option, Bengrus carylius. Okay, so it is the Indian crate that is known as. Okay, now we move on the next question, that is the snake eating snake is, वो snake जो snakes को ही खा लेते हैं, that snake is, A option is black cobra, B option is king cobra, C option is rattlesnake and D option is anaconda. So here the king cobra is the snake which eat snake. And जब snake दूसरे snakes को खाते हैं, that property is known as ophiophagic snakes. That snakes is known as the ophiophagic snake. So here the king cobra is ophiophagic snake, जो दूसरे snakes को खा जाता है. Now we move on the next question, that is venom of the viper affects. Viper एक snake का नाम है. जो जहर है वाइपर का वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है. ए ऑप्शन इज़ द नर्वस सिस्टम, बी ऑप्शन इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सी ऑप्शन इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डी ऑप्शन इज़ द नन ऑफ दीज. सो अगर हम बात करें वाइपर इफेक्ट्स, फर्स्ट तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा हार्ट से रिलेटेड सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको अफेक्ट करता है. और रीनल हेमियोडायनामिक कॉज करता है, थोड़ा किडनी के ऊपर भी ये इफेक्ट शो करता है. इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करता है. सो हेयर वी पुट द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ which one of the following mammals is not an odd-toed ungulate? What do you mean by odd-toed ungulate or even-toed ungulate? So look at here, if hoofed is one, जैसे जो एनिमल्स के पैर होते हैं, हुफ होते हैं, हुफ्ड होते हैं आगे, वो अगर वन है लाइक दैट, इस तरह है, इसको बोलते हैं हम odd-toed एनिमल्स. अगर हमारे पास हुफ्ड हैं दो इस तरह, इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं हम इवन टोड ungulate. सो अगर हम बात करें राइनासोर्स की, राइनासोर्स ओड होते हैं, ओड टोड है. यहाँ पे बोला गया नोट एंड ओड टोड, मतलब वो इवन टोड होने चाहिए. बात करें ज़िब्रा की, तो ज़िब्रा भी क्या होता है, हमारा ओड टोड होता है, ये भी ऑड है. हॉर्स की ये भी ऑड टोड होता है. बट हेयर कैमल इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कैमल के अगर हम ध्यान से देखें, हूफ जो होते हैं दैट इज़ इवन टोड. तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन हमें बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन? जिसके ऊपर फ्लैजिला हो, फ्लैजिला लाइक दैट, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज द फ्लैजिला. दो ऑर्गन्स होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी पे ये मिलते हैं ताकि वो मूव कर सकें. जैसे सीलिया छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं और न्यूमरस होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं वो. और जो फ्लैजिला होते हैं वो 2-3 मिलते हैं हमें और लार्ज साइज़ के होते हैं. और इन दोनों का काम होता है लोकोमोशन में.
तो अगर हम बात करें अमीबा में तो स्यूडोपोडिया होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अब बात करें एंटेमीबा हिस्टोलिटिका में भी क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होते हैं। बात करें प्लाज्मोडियम में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सो हेयर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम। So now we move on the next question, that is the disease caused by trypanosoma is, trypanosoma कौन सी disease cause करता है, trypanosoma palladium cause sleeping sickness cause होती है trypanosoma से। Now we move on the next question, that one is the last one. One example of the animal having a single opening to the outside that serves both as well as anus is, options are octopus, B option is Pterosaur, C option is Ascidia and D option is Fasciola. So here अगर हम बात करें कि सिंगल ओपनिंग लाइक दैट, सिंगल ओपनिंग की एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ की तरह एक्ट करेगा और वहीं से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो रिमूव होगा। माउथ और एनस एक ही टाइप से होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एग्जाम्पल है फेस्क्यूला हिपैटिका जो किसके अंदर मिलता है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवर्म्स में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू मेंशन इन अ कमेंट सेक्शन। ओके।